resume. I was introducing our guest. She is Rafia Khan, a mind transformation coach, and we invited her to share her insights, her professional experiences, and her real life observations. Before proceedings, I want to announce some things. First of all, we are going to record this session, and if it is okay for you, you can please switch on your cameras only if it is okay. And we are recording this session. Please keep it in mind. And the other thing I want to announce is when we were finalizing the topic, we were like just this because we will go to only 1 hour and we will discuss and cover this topic. Later on, while we sit together to structure this webinar, we came to realize that this topic couldn't be covered in one session. We had two options then. Either we had to go for the 2 hour sessions or we can switch it into the 2 sessions. We decided that we split this session into 2 sessions, and our later session would be inshallah after Ramzan and Eid. So this was a little announcement, and we have also one more announcement which would be for you at the end of the webinar, inshallah. Now I have a question for you. Have you ever compared yourself to someone online or felt stressed or anxious? क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग स्क्रॉलिंग कर रहे हों, डिफरेंट रील्स आपके सामने से गुजरी हों और आप उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा एंशियस फील करें? आप लोग माइक भी ऑन कर सकते हैं. अगर आप चैट में आंसर करना चाहें तो चैट में भी आंसर कर सकते हैं. मैम एज सच तो नहीं, लेकिन इस तरह अगर कहें तो अगर मैं स्टूडेंट की निस्बत बात करूं तो इस तरह हो सकता है कि अगर मैं जैसे कि ना मैं पढ़ा हूं तो मेरे से कोई आगे निकल गया है तो मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा पीछे रह गया हूँ. ये मैं पहले बहुत सोचता था, अब मैंने काफी कम कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता चला है कि ये इस सोच से कुछ नहीं होने वाला. तो ये है थोड़ा, फिर भी कभी कभार ये एक है ना, जैसे महसूस हो जाता है, फील आती है कि ना यार थोड़ा सा ना कि जैसे ये मेरा क्लास फेलो था, नाउ इज क्वालिफाइड और अभी मैं बैठा हूँ यहीं पे. कभी कभार ये आती है फिर. ऐसा ही है. सरप्राइजिंगली जब मैंने ये वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की, बैक ऑफ द माइंड मेरे सिर्फ ये था कि वी विल हैव वुमेन फीमेल ऑडियंस, और आई नेवर थॉट that males also feel this pressure. Maybe some more or some less, but I was just thinking about the females. And when I received first registration form from the males, then I realized, oh yes, this is not gender specific problem. Males can also feel some pressure from this online world. So Rafia, thank you so much for joining us. And what are your views about it? What do you think that many women and men feel stuck even though they are learning, they are trying, and they are carrying a lot in their lives? Why does they feel that their growth is invisible? Okay, first of all, thank you very much, Jamna, for inviting me on Mind Care Corner platform, and it's an honor really. And while I'm here, I was listening to Waleed. Sarah actually mentioned in the chat something that yeah, she said that on and off when watch financial independent girls around her. Yeah. And Shiri has just joined. If she wants to share her insights, if you ask a question from her, what does she think about? Yes, Shiri, I want to ask that क्या आपको कभी प्रेशर फील हुआ है while scrolling मोबाइल, that किसी भी किस्म का प्रेशर स्क्रीन यूज करने के बाद
कि आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा एनजाइटी हो रही है या दूसरों को देख के किसी भी किस्म का, आप चैट में भी आंसर कर सकती हैं. इफ यू आर ओके यू कैन टेल ऑन द माइक प्लीज. सो इफ आई से, जैसे वलीद ने अभी कहा कि कभी कभी ये थॉट आती है कि मेरे से आगे कोई निकल गया, बट जस्ट अ थॉट, इस थॉट का कोई फायदा नहीं है. एंड सिमिलरली सारा ने जैसे लिखा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट गर्ल्स को देखते हैं तो प्रेशराइज फील करते हैं. वलीद एक्चुअली हैज टाइप्ड समथिंग एल्स एज वेल कि Yeah, the more problem is with there are so many things to learn, but minds get disturbed which things to adopt first. Exactly. Good. These are very, very beautiful insights from your own personality. And good news is कि आप लोग इस तरह सोचते हैं. You feel कि हम ये feel करते हैं. Because social media world is kind of a vast world. ठीक है. अब तो आपके पास जब से मोबाइल फोन्स और ये सब आ गए, पुरानी बात हो गई है कि आ गए हैं. It's part of, it's necessity now. मोबाइल फोन्स अब छोटे आई थिंक 8-9 साल के बच्चे के पास भी अब मोबाइल है. सो द थिंग इज के जब आप इस वर्ल्ड में जाते हैं एंड यू सी के सो मच इज गोइंग ऑन अलोंग विद जो आपकी एक एक्चुअल लाइफ चल रही है. एक जिंदगी है जो आप एक्चुअली जी रहे हैं और एक जिंदगी है जो आपके डिवाइस के अंदर है. एंड दैट डिवाइस एक्चुअली मेक्स यू पजल्ड, क्वेश्चन योरसेल्फ. कि हमारी एज के लोग, जैसे वलीद ने भी मेंशन किया कि मेरी एज का ही लड़का या मेरी एज के लोग कहाँ पहुंच गए, मैं अभी तक वो नहीं कर सका. वो एक थॉट होती है, वो आती है एंड देन फिर हम ये सोचते हैं कि इसको सोचने का कोई फायदा नहीं है. इट्स एक्चुअली अ गुड थॉट. ये आनी भी चाहिए आपको, क्योंकि ये आपको पुश रखती है टू रीच योर गोल्स. तो सोशल मीडिया वर्ल्ड में होता यह है कि आप गए, आपने कोई रील देखी, आपने अपने रिलेटिव्स के अकाउंट्स देखे, उन्होंने कुछ पोस्ट किया हुआ है, कोई चीज हो रही है, एंड फॉर इंस्टेंस आपके दिमाग में थॉट्स आनी शुरू हुए. एंड इट कैन बी वाइस वर्सा. आपने कुछ शेयर किया है, क्वेश्चन इज व्हाई दे आर शेयरिंग इट और व्हाई यू आर शेयरिंग इट. इफ यू आर शेयरिंग समथिंग यू वांट टू शो योर अचीवमेंट्स टू गेन सिग्निफिकेंस. और एक ऑटो मोड पे ऐसा होता है कि आप चेक करते हैं कि लाइक्स कितने हुए हैं, किसने देखा है, किसने नहीं देखा. ठीक है. एंड फिर आप ये भी देखते हैं जिसने नहीं देखा है उस पर पहले नजर जाएगी कि किसने नहीं देखा. एंड दिस इज सो नेचुरल, दिस इज सो नेचुरल कि ह्यूमन माइंड वर्क ही इसी तरह करता है. जो आपके पास नहीं है आपकी नजर उस पर जा रही होती है, जो आपके पास है उसके लिए आपको एफर्मेशन अंदर से लानी पड़ती है कि यस आई हैव दीज थिंग्स एज वेल. सो द इल्यूजन ऑफ नॉट ग्रोइंग इनफ इज आप हर वक्त कांस्टेंट एक प्रेशर में, एक अप्रोच में, लाइक सारा सेट, प्रेशर ऑफ लड़कियां इंडिपेंडेंट है, मेरे ऊपर ये प्रेशर आता है. एंड इट्स एक्चुअली अ ह्यूमन नीड. एवरीबडी वांट्स कि मेरे हमारे यहाँ सबसे बड़ी इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल समझी जाती है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, देन वी फील वी आर इंडिपेंडेंट. लेकिन फाइनेंस के साथ फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग इज इंडिपेंडेंस टू. तो ये जो छोटे छोटे प्रेशर्स हैं ये आपको इस चीज में कॉटअप रखते हैं कि मैं ये करूं कैसे. एंड इट्स एक्चुअली योर इंटरनल फाइट. आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि मेरे अंदर जो ये वॉर चल रही है कि एम आई गुड इनफ और एम आई नॉट गुड इनफ, मैं ये कर भी सकता हूँ या ये मैं नहीं कर सकता हूँ. ये चीज आपको उलझाए रखती है एक अनएंडिंग फाइट के अंदर. एग्जैक्टली जो जैसे जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनको अपेरेंटली जो हाउसवाइफ्स होती हैं या जो घरों में मैनेज कर रही होती हैं उनकी लाइफ बड़ी अपेरेंटली जो है वो अच्छे लग रहे होते हैं. यानी कि अगर आप किसी की देख रहे हैं वो अपने बच्चों के साथ अच्छे मोमेंट्स की कोई पिक्चर दे रहा है, आप एक फुल टाइम वर्किंग इन्वायरमेंट में हो, तो आपको ये फील हो रहा होता है कि आई विश मैं इस तरह का टाइम स्पेंड कर सकती. एंड वाइस वर्सा, अगर आप अपने वर्क स्टेशन की पिक्चर्स किसी और की देख रहे हो, आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो भी आप फिर वो वाले सिनेरियो में जाना चाहते हो. सिमिलरली फॉर मेल्स, अगर आपके पास एक जॉब है, आप अपने एक बिजनेस ऑनर दोस्त की आप देख रहे हैं कि उसने अपने किसी ट्रिप की पिक्चर लगाई हुई है या वो उसका बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम एक कंपैरिजन में आ जाते हैं और हम वो वाली चीज जो है वो उसको ख्वाहिश करने लगते हैं कि हमारे पास वो होनी चाहिए थी. नाउ इसी से मेरे एक और क्वेश्चन जेन में आ रहे हैं कि दूसरों के बेस्ट मोमेंट्स को देख के कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर डेवलप हो रहा होता है और हम जो है वो यही सोच रहे होते हैं कि अब हम तो पीछे ही जा रहे हैं.
means that we are falling behind. तो किस तरह से हम इस फीलिंग को ओवरकम कर सकते हैं कि जो मतलब ये कोई हम तो कर रहे हैं जो कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द गुड मोमेंट्स जो हम दूसरों की स्टोरीज पे देख रहे हैं, दूसरों की स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, मतलब अपनी स्क्रीन्स पे दूसरों की लाइफ देख रहे हैं, वो एक प्रेशर डेवलप करिए। तो इसके लिए फिर आप क्या कहेंगे, कैसे हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं? ओके यमुना, डू यू रिमेम्बर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और इफ आई से कि जब हम छोटे होते थे तो हमारे मोहल्ले में हम देखते थे किसी की नई गाड़ी आई है या किसी की शादी हो रही है या कहीं पे मेहमान आ रहे हैं, तो काफी डिस्कशन होता था उस चीज को लेके कि ओ अच्छा इनके घर ये आया है, इनके घर ये गाड़ी आई है, या कोई भी इवेंट हो, कोई लड़ाई हो रही है मोहल्ले में, तो होता था कि ओह दो मोहल्ले वालों की लड़ाई हो रही है, इन दो मोहल्ले वालों की नहीं बनती, ये सब चीजें। नाउ दैट वर्ल्ड इज इन योर फोन, ठीक है, अब वो दुनिया इसमें आ गई है और Exactly. इंसान वही है, फीलिंग्स वही है। अब आपके पास अननेसेसरी एक प्रेशर डेवलप हो गया थ्रू दिस सोशल मीडिया टू गेट यू कॉट अप इन नेवर एंडिंग थॉट्स, ऐसा ही है। और वो एक के बाद है। एंड इट्स नॉट दैट कि आपने फोन साइड पे रख दिया है, स्पेशली व्हेन यू सी समवन फेमिलियर, you engage in that thought while you are not on your device. तो आपने जो सवाल किया है कि हम कैसे इस चीज से बाहर निकल सकते हैं, मैं आपसे एक और सवाल करूंगी कि अगर आपको मैं अभी कहूं कि इस कमरे से आपको दूसरे कमरे में जाना है, व्हाट विल यू डू? I'll stand up, open the door, or I'll move towards the other room. या एंड इट्स गोइंग टू बी अ कॉन्शियस डिसीजन। आप सोचेंगी कि मुझे इधर से उठ के दूसरे कमरे में जाना है। Exactly. सिमिलरली जब आप सोशल मीडिया पे होते हैं, आपको कॉन्शियस डिसीजन मेक करना होता है कि मुझे क्या देखना है और मुझे क्या नहीं देखना, मुझे किस चीज को देख के प्रेशराइज होना है और मुझे नहीं होना है। एंड ह्यूमंस एक्चुअली आर ऑन अ ऑटो मोड। आप एक ऑटो मोड पे चल रहे होते हैं और फिर वो आप जैसे गाड़ी आप चलाने जब आप गाड़ी पहली दफा चला रहे होते हैं, आप कॉन्शियस होते हैं, अच्छा मैंने टेस्ट पास कर लिया, मैंने गाड़ी चलानी है, आप देख 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 के रोड पे जा रहे होते हैं एंड यू आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट द ट्रैफिक अराउंड यू, पीछे से बाइक वाला ना आ जाए, हॉर्न किसी ने दे दिया तो क्या हो जाएगा। बट इवेंचुअली व्हेन यू गेट यूज्ड टू द रोड्स, यू हैव फेमिलियरिटी कि अब अच्छा ये मेरा रूट है, मुझे इस पे जाना है, आप कॉन्शियस नहीं रहते। आपको पता है कि अब मैंने ऑटो मोड पे मैं बैठूंगी, मैंने गियर्स चेंज करने हैं, मैंने सिग्नल कहाँ देना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाती है। अब आप यू आर नो मोर कॉन्शियस। तो जब आप सोशल मीडिया वर्ल्ड में जाते हैं, यू हैव टू बी कॉन्शियस what I'm watching, what I'm absorbing, and what I'm paying attention to. And believe me, ये सोशल मीडिया वर्ल्ड जो डिजाइन हुआ है ना, वो डिजाइन ही ऐसी तरह हुआ है टू कीप यू प्रेशराइज्ड सो यू कैन स्पेंड योर क्वालिटी टाइम ऑन योर डिवाइसेस टू मेक मनी फॉर दोज पीपल जो खुद आराम से बैठ के ये बिजनेस चला रहे हैं। This is very sad actually. This is sad, but unfortunately the world revolves around these things. So then you have to be mindful कि मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए। मैंने शायद आपको पहले एक दफा हमारी बात हो रही थी हम ना, तो मैंने आपको बताया भी था कि सोशल मीडिया वर्ल्ड डिजाइन कैसे हुआ था। आई गिव दिस एग्जांपल अ लॉट बिकॉज व्हेन आई फाउंड आउट दिस आई वाज अमेज्ड कि अच्छा ये इस तरह डिजाइन हुआ था। फेसबुक वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक था। उससे पहले काफी सारे थे, बट दिस वाज द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म। एंड मार्क जुकरबर्ग, हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, he actually got connected with those people जिन्होंने casinos डिजाइन किए थे लास वेगस से, and he asked them what keep people hooked up in casinos for so long कि वो इतने पैसे खर्च करते हैं, and they come back again and again and again, and they actually put that idea on Facebook. उसके बाद इंस्टा आया, स्नैपचैट आया, टिकटॉक आया, फिर रील्स आ गई, फिर शॉर्ट्स आ गई, फिर हाईलाइट्स आ गई, एंड यू नेम इट। इससे आगे और भी बहुत कुछ आने वाला, और आप एक लूप दूसरे लूप में स्टक होते जाते हैं। सो इट्स ऑन यू व्हेन यू नो योर सेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट नोटिसिंग योर पैटर्न, मुझे क्या चीज बॉदर करी। जैसे वलीद ने कहा कि मेरे से आगे कुछ लोग निकल जाते हैं, किस चीज में आगे निकल जाते हैं, पढ़ाई में निकल गए हैं, पैसा कमाने में निकल गए हैं, किसी के पास बाइक आ गई है एंड ही हैज नॉट, इनके पास बाइक नहीं है, किसी ने ड्राइविंग सीख ली है और ही कैन नॉट ड्राइव येट। Exactly. तो इन अ वे ये आपको आगे भी बढ़ाती है, बट यान यू से छोड़ो यार ये सोच एवं ही है, मुझे नहीं करनी। बट देन व्हाट आर यू डूइंग? Now क्योंकि my अगर आप कुछ question, I have a question yes, at this point.
Yes, we have noticed that we are diverting towards some other lives or get fascinating from their lives. Then how we can notice and trust our small changes, the changes we are doing, we are going through, we are struggling for them, that do not show on the social media but matters deeply. Then how we can, means in short, how we can trust ourselves and our small invisible steps that obviously we are taking in our lives. Okay, short answer है, ask yourself why are you doing this. अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि आपने कोई काम करना है, आप स्क्रोलिंग करे जा रहे हैं, आपका वो काम रह गया एंड आप वो काम करने में लेट हो गए एंड यू आर लाइक यार मतलब ओके मेरा फिर आप परेशान हो रहे होते हैं. ईदर यू आर टेकिंग दैट एंगर और जो भी आपकी एंजाइटी होती है उसको किसी और पे निकाल रहे होते हैं. पेरेंट्स अपने बच्चों पे निकालते हैं यूजुअली, ठीक है, एंड भाई बहनों की आपस में आर्ग्यूमेंट हो रहे होते हैं. मदर्स अपने बच्चों पे निकालती हैं या अपने स्पाउसेस पे निकालती हैं, स्पाउसेस आदमी अपनी वाइफ पे निकालते हैं या घर पे निकालते हैं. ये काम नहीं हुआ क्योंकि ये जो दुनिया है ना सोशल मीडिया की, ये आपको बहुत मजा देती है, ये आपको एक्चुअल वर्ल्ड से निकाल के एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड में ले जाती है. सो कॉन्शियस लेवल पे यू नीड टू ऑब्जर्व कि मैं ये कर क्यों रहा हूं. आपका फोन, ये जो डिवाइस है, ये पूरी बात सुनता है आपकी, एंड आई एम 100% श्योर आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने कोई बात की, अगले दिन उससे रिलेटेड कोई वर्ड आपने बोला, कुछ किया, उससे रिलेटेड कोई रील और कोई शॉर्ट आपके सामने आ जाएगा या कोई ऐड आ जाती है उससे रिलेटेड. लाइक द अदर डे आई वाज लुकिंग फॉर अबाया फॉर रमजान, और मेरे पास, मैं कह रही हूँ मैंने तो ये इस पे तो सर्च ही नहीं किया, मैं तो अपने बात कर रही थी अपनी फ्रेंड्स से अबाउट दिस ऑन, और इट्स लिसनिंग एवरीथिंग, ये डिवाइस है. तो जो आपका सवाल था कि हाउ वी कैन नोटिस, बाय अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, बाय वर्किंग ऑन योरसेल्फ कॉन्शियस लेवल पे कि मैं ये क्यों करता हूँ एंड व्हाट एम आई गेटिंग फ्रॉम दिस. अभी अगर मैं आपसे पूछूं कल आपने कितने शॉर्ट्स देखे थे, सवाल है. ये तो कैलकुलेशंस होती नहीं है, जब बैठो तो फिर तो ना टाइम का पता चलता है और ना शॉर्ट्स की काउंटिंग होती है. एग्जैक्टली. अब मैं आपसे पूछूं आपने किस चीज के बारे में शॉर्ट्स देखे थे? रैंडम, जो सामने आता गया. जो सामने आता है क्या, और उस एक एक चीज का आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता गया. अभी रमदान आ रहा है एंड उससे रिलेटेड देयर आर सो मेनी रील्स एंड एवरीथिंग, आपका स्पिरिचुअलिटी आती है. या वो मैं अच्छा है. एग्जैक्टली आपने वो अबाया वाली बात की तो मेरे जहन में कल की ही रील्स चलना शुरू होगी. वहाँ पे रमज़ान जो है उसकी डेकोरेशंस को लेके, रमज़ान मील प्रिपरेशंस को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल रील्स जो हैं वो चल रही हैं. इवन मतलब ऐसी भी रील्स बन रही हैं कि बॉयज़ के रेफरेंस से कि उनकी नाइट गैदरिंग्स, क्रिकेट मैच होते हैं पाकिस्तान में रात को, वो मतलब उसकी प्लानिंग चल रही है. लेडीज़ के लिए मील प्रिपरेशंस पहले कितनी करनी है, क्या करनी है, वो वाली तैयारियां चल रही हैं. मतलब सारा इस तरह का कंटेंट मुसलसल जो है वो चल रहा है. तो मुझे आपसे ये पूछना था, मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा था कि ये एक ऑटोमेटिक कंपैरिजन डेवलप कर देता है. मैंने अभी तक कोई रमजान प्रिपरेशन नहीं की मील्स के रेफरेंस से, तो एक अनकॉन्शियस लेवल पे मैं इस बात को सोचने लग गई कि मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, क्या मैं उस टाइम पे मैनेज कर पाऊंगी या नहीं. तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जो कंपैरिजन है, हाउ दिस कंपैरिजन स्लोली पुल्स अस अवे फ्रॉम द सिचुएशन और फ्रॉम द पार्ट वेयर वी ट्रूली आर. मतलब मैं नहीं कर रही, ये मेरा पॉइंट था, लेकिन उन स्क्रॉल्स करते करते, उन चीज़ों को देख देख के मैं एक कंपैरिजन मोड में आ गई कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने क्यों नहीं किया, मैं उस सिचुएशन को भूल गई. तो ये कंपैरिजन किस तरह हमें जो है अपने, जो हमारी स्ट्रेंथ्स के लें, हमारे पॉइंट्स के लें, हमारे डिसीजंस के लें, उससे कैसे हमें ये दूर लेके जाता है? By aligning with your purpose. What is your purpose of fasting? What is your purpose of इबादा? आपने मुझे रमजान का रेफरेंस दिया है तो मैं रमजान की ही बात करूंगी कि व्हाट इज रमजान फॉर यू. ठीक है, तो अगर आप अपने पर्पस से अलाइन है ना कि ओके, अगर इवन इवन लाइक जो लोग अभी खाने की वीडियोस और ये सब लगा रहे हैं, व्हाट इज देयर पर्पस?
ऑब्वियसली गेटिंग व्यूअर्स, उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने लोग आएंगे उनके पैसे बनेंगे, व्यूअरशिप मिलेगी, और बाद में वो जो यूट्यूब वाला एक फ्रेम आ जाता है बड़ा सा, जो मैंने अक्सर उसमें पीछे लगा हुआ देखा है वॉल्स पे, Yes. तो ठीक है, तो द टारगेट इज टू अप टू दैट मार्क, सो देयर पर्पस इज टू गेट दैट, एंड वी एज ए ऑडियंस हम उनका पर्पस फुलफिल करवा रहे हैं. व्हाट इज योर पर्पस? लाइक यू हैव क्रिएटेड माइंड केयर कॉर्नर, इट्स अ यूट्यूब चैनल आपने भी बनाया हुआ है. व्हाट इज योर पर्पस? व्हेन यू आर अलाइंड विद योर पर्पस, यू डोंट गेट प्रेशराइज्ड, और फिर आप कंटेंट और चीजें भी बहुत देखभाल के करते हैं. अलाइनिंग विद योर एक्चुअल लाइफ, यू हैव अ लाइफ, आई हैव अ लाइफ, वी बोथ हैव फैमिली लाइफ, हम सबकी. तो द थिंग इज कि हमने इसको कितना टाइम देना है. अगर मैं आपको एग्जाम्पल ऐसे दूं, फॉर मी ऑनलाइन वर्ल्ड इज माई वर्क प्लेस. मैं ऑफिस गई, मैं वापस आई, मेरा काम खत्म हो गया. फॉर यू इट इज अ वर्क प्लेस, बट कुछ लोगों का काम ही टोटल इसी पे, बिकॉज देयर पर्पस इज अलाइनिंग. बट व्हाट्स द पर्पस? इज इट अ मीनिंगफुल पर्पस? अब आप, रमदान आ रहा है, आप आपका सारा चीज उस कंटेंट क्रिएशन पर है कि मेरे यूट्यूब के चैनल की व्यूअरशिप बढ़ जाए, एंड यू आर डिस्कनेक्टेड फॉर योर सोल पर्पस ऑफ द एसेंस ऑफ रमदान. तो अपना पर्पस जानने के लिए भी आपको अपने आप को पहले जानना है कि मेरा माइंड, मेरी सोच अलाइन किस चीज के साथ है. टिकटॉक्स इजी वे फॉर न्यू जनरेशन, जो अभी करंट जनरेशन है, सबसे इजी वे है फॉर मेकिंग मनी. एंड बिलीव मी, मैं ऐसे पेरेंट्स को जानती हूँ जो अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि उनके एक रिश्तेदार के बच्चे ने टिकटॉक से इतने पैसे कमा लिए, तो आप क्यों नहीं कमा रहे, वही बन जाओ. सो माइंडफुलनेस इज अ की. आपकी ग्रोथ जो है, इट्स 4 वे: इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल आपको चाहिए होती है. बट अगर आपकी पर्पस अलाइन है आपकी एक्शंस के साथ, यू विल नॉट फील प्रेशराइज्ड. हम सब शॉर्ट्स देखते हैं, हम सब रील्स देखते हैं, बट क्यों देख रहे हैं ये पता होना चाहिए. ये पर्पस वाली बात से एक मेरे जहन में एग्जांपल आ रही है. मेरी फ्रेंड एक बात करी थी कि वो अपने बच्चों को, मतलब ये कुछ अर्सा पहले की बात है, कि वो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कराना चाहती है. और मेरे उसके साथ काफी डिस्कशन हुई कि वो क्यों चाहती है. उस टाइम पे उसने मुझे कहा कि वो कुछ स्पेसिफिक लोगों को फॉलो करी है इंस्टा पे और फेसबुक पे, तो उससे मतलब वो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है कि उनके बच्चों का फ्री टाइम है, वो अपनी मर्जी से उठते हैं, और जो है मतलब उनका रीडिंग टाइम होता है. इस तरह से मतलब उसने मुझे बड़ी एक जो है ना फैसिनेटिंग सिचुएशन बताई कि ये सब कुछ होता है. तो उसने भी स्टार्ट करा दिया अपने बच्चों को. एंड कुछ अरसे बाद मेरी दोबारा बात हुई. मैंने उससे पूछा कि मतलब कैसा चल रहा है, एक्सपीरियंस कैसा है. एंड शी सेड इट्स वेरी हेक्टिक. सर मतलब मैं बहुत तंग आ गई हूँ इस चीज़ से, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस चीज़ को कैसे मैनेज करूँ. बच्चे पूरा दिन घर होते हैं, मुझे घर भी देखना होता है. तो मतलब इस बात से मुझे अभी आपने मतलब जो कहा कि हम, हमारा गोल क्या है, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं. और क्वेश्चन मेरा फिर वही है कि हम क्यों ऐसे गोल्स चूज करते हैं जो हमें फैसिनेटिंग और इम्प्रेसिव लग रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा एक्चुअल पर्पस होता है उसको वो फुलफिल नहीं कर रहे होते हैं. पीयर प्रेशर, यस. सोशल मीडिया वर्ल्ड, आपकी फ्रेंड ने ये कर ली, और लोग देखें यमुना, एक चीज होती है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि लेट्स गिव, जो कि मेरा ये काम है, लेट्स गिव एन एग्जांपल फ्रॉम दैट. अगर मैं आप ही से बात करती हूँ, या हम किसी ऑडियंस में से किसी को ले लेते हैं, जो हमारे अटेंडीज हैं, इफ समबडी वांट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस क्वेश्चन जो मैं पूछने वाली हूँ, वुड एनीबडी लाइक टू से? तो मैं एक चीज पूछती हूँ, वलीद, सारा, शीनी, एनीबडी, एनीवन? नो वन? ओके. सो यमुना, यस. आपकी आपकी जो गाड़ी है अगर आपके पास है, तो वो किस रंग की है? वाइट. वाइट है. अब जब आप रोड पे जा रही हैं, तो आपकी नजर सबसे पहले जो गाड़ी का मॉडल आपका है और जो कलर आपकी गाड़ी का है, आप सबसे पहले उन्हीं कलर की गाड़ियों को नोटिस करती हैं, isn't एग्जैक्टली. it? रोड पे सबसे ज्यादा वही नजर आती है. वही नजर आती है. तो यस. इसका मतलब ये है कि बाकी गाड़ियां नहीं है, नहीं. ब्लैक, रेड, ब्लू या और मॉडल की गाड़ियां नहीं है, वो भी हैं, एग्जैक्टली. लेकिन आपकी नजर किस पे जा रही है? जो आपके ब्रेन में. यस. सो सिमिलरली, जब आपके दिमाग में एक पिक्चर है ना, लाइक यू गिव एन एग्जांपल ऑफ होम स्कूलिंग,
तो यू वर अट्रैक्टिंग द पिक्चर व्हाट वाज इन योर हेड. उस वक्त आपके हेड में था ओ बच्चों का फ्री टाइम होता है, स्पेस भी मिल जाता है, एक रूटीन भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो दिस इज फैसिनेटिंग. तो आपने उसी चीज को गौर करना शुरू कर दिया. अब जब एक्चुअली यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट एक्सपीरियंस, अब आपने किसी और चीज को ढूंढना शुरू किया. यू वेंट इन दैट कंप्लेनिंग मोड के ये तो इतना हेक्टिक हो गया, ये तो इतना हेक्टिक हो गया, तो नाउ यू आर लुकिंग फॉर और किस किस को ये तकलीफ हो रही है. बेस्ड ऑन दीज एक्सपीरियंसेस उन्होंने आपसे बात की, यार मैं तो इस परेशानी में. नाउ इफ यू गो टू योर फ्रेंड, मैं होम स्कूलिंग सोच रही हूँ, शी विल टेल यू यार मत करवाना, Exactly. बहुत बहुत जो है ना मुश्किल काम है भाई, मैंने करवाया है. एंड फिर एक और कोई फ्रेंड आएगी, वो कहेगी खुद ने तो करा लिया, अब तुम्हें मना कर रही हूँ. ऐसा ही होता है एक्चुअली. दिस वाज डिस्कशन बिटवीन अस, क्योंकि मैं चाह रही थी थोड़ा सा अपने बेटे के लिए, तो इस उस पे ही मैं उसके साथ, क्योंकि वो ऑलरेडी इस फेज में थी, तो मैं उससे इसीलिए यही डिस्कशन चल रही थी, और ऐसा ही होता है. एग्जैक्टली. तो अगेन क्वेश्चन वही आता है, व्हाट इज योर पर्पस इफ यू वांट टू गो फॉर होम स्कूलिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. क्योंकि कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा, सब कुछ तो नहीं मिलेगा. हम सोशल मीडिया वर्ल्ड पे बात कर रहे हैं. इफ यू आर ओपनिंग या क्रिएटिंग अ यूट्यूब चैनल, उसके प्रेशर्स भी आएंगे. हमें लग रहा होता है वीडियोस और ये बनाना आसान है, बट आपने एक काम शुरू किया, देन कोई भी वो काम जो आपके लिए दर्द सर बन जाए, इट इज नॉट अलाइनिंग विद योर पर्पस. अब वो चाहे आप क्रिकेट खेलें, चाहे आप किसी स्पोर्ट्स में हो, अगर उस आपकी इनर सेल्फ उससे अलाइन नहीं कर रही है, इट विल बी अ हेक्टिक फॉर यू एंड इट विल कीप यू पुश इन अ प्रेशर. हम कितने लोगों के इंटरव्यूज सुनते हैं जिन्होंने अपने करियर्स चेंज कर दिए, इंजीनियर शेफ बन गए. आई हैव क्लाइंट्स जो आए कि हम तो ये बनना चाहते थे लेकिन हम ये बन गए, अब हम अपना करियर चेंज कर रहे हैं, वी आर परस्यूइंग दिस थिंग. सो माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम, जो अब की जनरेशन है, यंग बच्चे, आई एम एक्चुअली वेरी होपफुल फॉर देम. क्योंकि मैं सबकी बात नहीं करूंगी, लेकिन जो माइंडफुल है, दे एक्चुअली स्ट्राइव टू नो कि वो उनका पर्पस क्या है, वो करना क्या चाहते हैं. वो बच्चे बच्चियां जो एक्चुअली इन डेप्थ सोचते हैं कि मतलब दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि मैं जो हूं ये कर क्यों रहा हूं, मुझे करना क्यों है. लाइक वलीद सेड, मैं एक थॉट आती है फिर मैं उसे छोड़ देता हूँ. सो जब वो उस थॉट को छोड़ते हैं तो वो दूसरा क्या काम करते हैं, हाउ ही परस्यू कि यार मुझे भी इस लेवल पे जाना है लेकिन मेरा पर्पस अलाइंड होना चाहिए. Is exactly बिकॉज इफ यू I आर डूइंग, want to ask that how we can reconnect with our own aligned thoughts or with our own identity. yes, by working on yourself, Okay. by working on yourself, by knowing about yourself and by having an awareness of yourself. अपने ब्रेन के, अपने माइंड के बारे में जानना कि मेरा एक्चुअली पर्पस क्या है. क्योंकि यू विल एंड अप इन नेवर एंडिंग यू नो कंपटीशन. एक एक फाइट आपके अंदर चलती रहेगी हर एज में. इट्स नॉट जस्ट कि आप यंग हैं या आप बूढ़े हैं, आप जवान हैं, जिस भी एज में आप, मिडिल एज है. मेरे पास मिक्स क्लाइंट्स होते हैं, इवन इवन यंग बच्चे आते हैं. आई एम हैप्पी कि वो अपने ऊपर काम शुरू कर देते हैं. बिकॉज I know a girl, she's 20 years old and she is looking for investments. She's earning her money and she wants to invest that money. अब आप सोचें अगर 20 साल की बच्ची ये सोच रही है तो 25 साल में अपना बिजनेस या अपनी कोई चीज खड़ी कर लेगी, जो अक्सर 35-40 में लोग करते हैं काम. Yes. And just by working on yourself, because she was lost, she was nowhere कि मैं क्या करूं, and she worked on herself. मेरे पास आई, शी वर्कड ऑन हरसेल्फ एंड शी अंडरस्टूड ओके मेरा एक्चुअल मकसद ये है. शी इज स्टडीइंग एंड शी इज डूइंग दैट. लाइक सारा सेड, मुझे मुझे होता है कि मैं इंडिपेंडेंट लड़कियां देखती हूँ मेरी एज की कर रही हैं काम, ठीक है, बट अगेन किस किस्म का काम, क्या काम. अगर आप एक टिकटॉकर हैं, आज अदर डे आई वाज टॉकिंग टू समवन, मैंने कहा अगर आज टिकटॉक बंद हो जाए, कितने लोग, बच्चों का तो रोजगार बंद हो जाएगा उससे. यस, ये आपकी टिकटॉक वाली बात से मुझे एक और थोड़ा जहन में आया. ये यूट्यूब ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉक अर्निंग, ये सब जो चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही हैं. और जो हमारी यंग जनरेशन है, उसमें से जो लोग इसको एज अ कैरियर पाथ ले रहे हैं, वो जो एक नॉर्मल जनरेशन है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है. आप मतलब अगर ये थोड़ा सा इस फील्ड से रिलेटेड अगर आप चीज़ें थोड़ी देखना शुरू करें, आपको डॉलर्स में अर्निंग नजर आएंगी, आपको मिलियंस में और थाउजेंड्स में व्यूज नजर आएंगे. तो मतलब ये एक बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है.
खास तौर पे उन फेज के लोगों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने करियर्स को सेट करने के लिए। यस। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ बीइंग हार्श विद आवर सेल्स ब्लॉक्स ग्रोथ मोर देन मिस्टेक्स अवॉइड। मतलब कि हम ये सब कुछ अचीव करने के लिए जो है हम कभी कभी अपने साथ भी हार्श हो रहे होते हैं, और उसमें जो है कुछ हम गलत डिसीजंस भी ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये यूट्यूब ऑटोमेशन को ही ले लें, लोग भाग रहे हैं इसके पीछे क्योंकि आपके जो है फौरन फौरन आपके व्यूज आ जाएंगे, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, और कुछ लोग फिर इस बात को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब वो नहीं चीज अचीव हो रही होती तो फिर वो एक अनकॉन्शियस प्रेशर डेवलप हो रहा होता है, तो ऑब्वियसली फिर वो एक ग्रोथ रुक रही होती है। तो हम कैसे इस चीज को कह सकते हैं कि हम अपने ही साथ हार्श होके, मतलब कैसे ये चीज इफेक्ट करती है कि हम हार्श हो रहे हैं, अपनी ग्रोथ खुद रोक रहे हैं। अगेन यमुना वहीं आके बात आती है कि आप वो काम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, देर आर गुड कंटेंट्स ऑन सोशल मीडिया, उसी से आपको मतलब मैं तो ये कहूंगी कि इट्स अ ब्लेसिंग इन अ वे कि आज कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि उसे अवेयरनेस नहीं आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक इंसान तक पैगाम जाता था, वो आगे पहुंचाया जाता था, दूसरा इंसान वो मैसेज देता था, फिर तीसरा देता था, इस तरह। ठीक है, आपके पास सारे टूल्स हैं, आप खुद वही सवाल अपने आप से करें, मैं यूट्यूब चैनल क्यों खोल रहा हूँ। लेडीज हु आर डूइंग दिस, जो इनको कुकिंग का शौक है, अगर वो कुकिंग के लिए चैनल खोल रही है, इट्स गुड, उनके पर्पज से अलाइन हो रहा है, वो ना बर्डन फील करेंगी ना प्रेशराइज फील करेंगी, बिकॉज दे लव डूइंग इट। जो लोग इस्लामिक वो लाइक देयर आर सो मैनी इस्लामिक प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको मिलता है कि आपको गुड कंटेंट मिलता है, लाइक योर प्लेटफॉर्म, आप एक अवेयरनेस दे रही हैं। आई एम श्योर यू डोंट गेट टायर्ड व्हाइल क्रिएटिंग योर कंटेंट, क्योंकि आपको पता है वो आप कर क्यों रही हैं। यस। लेकिन अगर अगर अभी मैं आपसे कहूँ कि यमुना एक सेलिब्रिटी की वीडियो बना के डाली, एंड आई गिव यू पर वीडियो मैं आपको 25,000 या 30,000 दे रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज द करेंसी, लेकिन चले, यू विल गेट टायर्ड एक टाइम पे यस एग्जैक्टली ऐसे ही। कि ठीक है पैसा आ रहा है लेकिन मैं ये कर क्यों रही हूँ, दिस इज नॉट अलाइनिंग विद माई इनर सेल्फ। अच्छी बात है ये यूट्यूब सोशल मीडिया है, ये प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास, इनको यूज आपने कैसे करना है। आप कुरान शरीफ भी खोलने के लिए बैठे हैं तो आपको पता होता है मैं खोल क्यों रहा हूँ। रोजा भी आपने रखना है तो आपको पता है यार मैं क्यों रख रहा हूँ, अल्लाह ताला ने कहा है रमजान आ रहा है मैंने रोजा रखना है। अब जो वो बच्चे हैं जो अभी आप मुझे बता रही थी कि क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने भी देखा है अपने बचपन में, क्यों खेलते हैं क्रिकेट रात में, टाइम पास हो जाए, सैरी तक सोना नहीं है, फिर सैरी के बाद सारा दिन पूरा सोना, दिन सोना, एग्जैक्टली। फिर पूरा दिन सोना। यस। कहने को रोजा है ताकि रोजे का जो टाइम है वो सोने में गुजर जाए, अफ्तारी के टाइम उठेंगे। इज द पर्पस फुलफिलिंग, उनका जो हो। एसेंस, एग्जैक्टली, सो दे आर अलाइंड विद देयर पर्पस, वो उसके लिए रास्ते निकाल रहे हैं। ये जरूरी नहीं होता पर्पस हमेशा कोई पॉजिटिव ही होगा। हमारी दुनिया में इस वक्त जो इतना कियोस मचा हुआ है, हर एक का कुछ ना कुछ पर्पस है जिसको फुलफिल कर रहा है। लेकिन जो अगर गलत लोग हैं जिनके पर्पस गलत हैं, उनके लिए वही पर्पस ठीक है। सो इफ दे आर डूइंग इट, उन्हें प्रेशर नहीं हो रहा क्योंकि उन्होंने पर्पस बनाया हुआ है दुनिया में डिस्ट्रक्शन लाना, दे आर फाइन विद इट। प्रेशर वो फील करता है जिसका पर्पस अलाइन नहीं हो रहा, वो अंदर एक फाइट में है कि मुझे कुछ करना है, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, आई वॉन्ट टू बी एडमायर्ड, आई वॉन्ट अ सिग्निफिकेंस, दिस इज अ ह्यूमन नीड। इंसान की जरूरत है ये कि आपको अच्छा कहा जाए, आपको सराहा जाए, आपकी तारीफ की जाए। ये इंसान के अल्लाह ताला ने नेचुरली इंसान के अंदर ये चीज रखी, लेकिन वो तारीफ कैसी होनी चाहिए, व्हेन यू आर अलाइन विद योर पर्पस। हम ये कैसे कर सकते हैं, पेपर पे एक्सरसाइज है, पेपर पे लिखे मैं ये क्यों करना चाहता हूँ और या मैं ये क्यों कर रही हूँ। रमजान की प्रिपरेशन करनी है, क्यों करनी है, सो यू हैव आंसर्स के ओके, अगर मैंने पहले ये काम करके रख ली है, प्री प्रेप मतलब जो अक्सर रोल समोसे लोग बना लेते हैं, अगर मैंने फ्रोजन चीजें करके रख ली हैं तो मेरा कोई टाइम सेव होगा, अगर वो टाइम सेव होगा तो मैंने उस टाइम के लिए क्यों सेव करना है वो टाइम। मे बी मैं कोई रमजान से रिलेटेड कंटेंट बना लूं, मे बी मैं उस टाइम पे थोड़ा कुरान पढ़ लूं, मे बी मैं कोई इस्लामिक बुक पढ़ लूं, या मैं कुछ ऐसी चीज अपने बच्चों से बैठ के डिस्कशन कर लूं, अपने बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी क्रिएट कर लूं, क्योंकि मैंने अपने फ्रोजन आइटम या अपना एक काम करके रखा हुआ है। सो यू हैव अ पर्पस नाउ कि मैं ये काम क्यों करके रख रही हूँ। एंड दिस इज तो एक्चुअली व्हेन सेल्फ सार अवेयरनेस।
Exactly, this is self awareness. So if when Sarah says, अगर मैं सारा को इनवाइट करूंगी, Sarah says I feel pressurized गर्ल्स के साथ जो इंडिपेंडेंट है, so I'll invite Sarah कि okay Sarah, let's ask you what is your purpose, how you feel when you see those girls, what is an independence for you. क्योंकि सारा इज नॉट द ओनली गर्ल, बहुत सारी लड़कियां हैं जो इसी प्रेशर में, ये सोशल मीडिया वर्ल्ड ही ऐसा है, एंड दे वांट यू टू गेट प्रेशराइज, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल्स खोलें, ज्यादा से ज्यादा आप पैसे इन्वेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप बढ़े, उनका तो पैसा बन रहा है ना, दैट्स व्हाट देयर पर्पस इज. Exactly. सो ये एक खाई है, आपको बहुत तेज, और एंड यू कैन नॉट अवॉइड, ये हो नहीं सकता कि आप कहें कि वो मैं ये कर, ऐसा नहीं है. हम इसी दुनिया में हैं और इसी दुनिया में ही सब हो रहा है. आपने क्या करना है, व्हाट इज योर पर्पस, यू शुड नो दैट. और जितना आपको अपने बारे में ज्यादा पता चलता है, उतना आप सरप्राइज भी होते हैं, अमेज भी होते हैं, एंड यू आर मोर एंड मोर अलाइन टूवर्ड्स योर पर्पस, कि मुझे एक्चुअली करना क्या है. और फिर आप एक्सपेरिमेंट भी करते हुए नहीं डरते, क्योंकि यू हैव द अल्टीमेट गोल इन योर हेड, मुझे उस मकाम पे पहुंचना है, और उसके लिए मुझे अलाइनमेंट चाहिए कि मुझे ये करना है. गलत तरीके भी हैं, सही तरीके, एंड बिलीव मी, शॉर्ट रास्ता ना बड़ा आसान होता है. Exactly. Yes, I गलत रास्ते, हराम रास्ते बहुत इजीली एक्सेसिबल है. हलाल रास्ता इज लॉन्ग टर्म, लेकिन आप जब उस मकाम पे पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि ओह, आई हैव अचीव्ड समथिंग, आई हैव अर्नड इट. वो कंटेंटमेंट भी तो चाहिए ना. आई नो समवन, जिन्होंने, अ फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड, जिसमें गर्ल फ्रॉम मलेशिया, शी इज फेमस टिकटॉकर देयर, और सेलिब्रिटी है वो, गर्ल्स लुक अप टू हर, एंड शी इज लाइक के द गर्ल इज नॉट हैप्पी. सो माय फ्रेंड आस्क्ड हर कि तुम्हें तो सब जो है मतलब लुक अप करते हैं कि तुम तो ये हो, एंड शी सेड कि या बट मैं हैप्पी नहीं हूँ, आई फील लाइक आई एम इन अ प्रिजन ऑफ बीइंग बेस्ट ऑलवेज. मुझे हर वक्त अच्छा दिखाना है, मुझे हर वक्त अप टू द लेवल, उस लेवल को मैच करते रहना. तो ये जो प्रेशर है हमारे बच्चों पे स्पेशली, कमाने का, ब्रांड्स लेने का. यस, सारा ने क्या लिखा, सारा ने, आई वांट टू रीड. I feel that by becoming financial independent, I will be satisfied. It brings comfort, peace, and happiness. ओके, सो सारा, अगर मैं आपसे यहाँ बात करूँ तो यस, मनी इज इम्पोर्टेंट, फाइनेंसेस आर इम्पोर्टेंट, ये इस दुनिया का हिस्सा है. येट व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू. क्वेश्चन ये आता है कि हाउ यू डिफाइन अ डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस. व्हाट इज पीस फॉर यू, व्हाट इज कंफर्ट फॉर यू. क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कम में हैं लेकिन खुश हैं. फॉर देम, उनकी अलाइनमेंट घर के अंदर है, एंड दे आर हैप्पी. एंड कुछ ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, एंड दे आर नोवेयर. I have a client, she is earning in millions and she is not happy because she has no connection with her parents and she has no connection with her children. So बात वही है कि what is the definition of happy, क्योंकि अब ये जो सारा ने बात की है, this is called pressure. आपको हर बंदा सोशल मीडिया पे ये दिखा रहा है कि उसने ये गाड़ी ले ली, उसने ये कर लिया. ओके, yes, that I can afford my expenses and don't have to ask for money to my parents. Yeah, that's good thing. It's actually a good thing. So what are you doing for it? सवाल है कि ये थॉट आ रही है, व्हाट आर यू डूइंग फॉर इट. आर यू अलाइन विद योर पर्पस, डू यू नो द पर्पस. आपका क्या, आई डोंट नो योर एज, आपकी क्या एज है, एंड आर यू स्टिल स्टडीइंग और नॉट, लेकिन आर यू अलाइन विद द पर्पस, करना क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल थॉट, इफ यू आर इन योर 20s, और इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आपको अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं चाहिए, एंड यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट लाइक अदर गर्ल्स जो कि कर रही हैं. तो हैव यू एक्सपेरिमेंटेड एनीथिंग येट, आपने कुछ किया है ट्राई इसके लिए. बिकॉज दिस प्रेशर इनसाइड यू, जिस जो चीज हैप्पी फील करने वाली है ना, वो आपको वो भी हैप्पी नहीं करने देगा, बिकॉज यू आर विद योर पेरेंट्स. जितने बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स ही नहीं होते, बट दे हैव मनी. दैट्स गुड, सारा. And when you did your MPhil, you are happy with
when you finish your MPhil and you're applying for a teaching job, so you haven't got any job yet? ये मेरा सवाल है, it's a question. Okay, so अगर मैं आपसे कहूँ कि आप टीचिंग जॉब्स अभी अप्लाई कर रही हैं, so you are in the process of getting financially independent. ठीक है, तो is it aligning with the purpose? You love teaching? Do you like teaching? Good. So when you like teaching and you haven't secured any job yet, isn't it? Yes, exactly. I think it is so. हाँ, अभी नहीं मिली आपको. So have you find out the options? What other options are there around this teaching job कि मैं और क्या कर सकती हूँ to get financially independent? Obviously कहीं से starting point होगा, but if I say कि मुझे महीने में कितने पैसे चाहिए when I feel I'm financially independent, तो आप ये सोचें कि मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मुझे कितने महीने में पैसे चाहिए वेयर आई फील कि मुझे इन चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगने पड़े. माशाल्लाह यू आर एन ओल्डर गर्ल, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे यस यू डोंट वांट टू, तो मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ? यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स, व्हाट एल्स यू आर डूइंग? गुड. You did a job as a visiting lecturer for some time. Did you enjoy that? Good. So now you see, आप टीचिंग जॉब्स अप्लाई कर रही हैं, आप एज अ लेक्चरर गई हैं. What else is there? What else you have done to get? And did you felt financially independent when you went for visiting like वो जो लेक्चरर के लिए and you earned money? My understanding is it was a paid thing. Yes. Yes. So did you felt financially independent at that time? She answered yes. Good. So now you see, आपके पास ऑप्शन आया, आप टीचिंग जॉब्स अप्लाई कर रही हैं, लेकिन आपने ये काम भी किया हुआ है पहले. What else is there? Good. You are looking for a permanent job, लेकिन जब तक वो परमानेंट जॉब नहीं आएगा तब तक आप क्या करेंगे? Because you are continuously in a pressure of not having a job. Yes. And this is almost the same scenario for whole middle class. Yes, it is. And even for the boys, not even only for the girls. And boys have more pressure because they have to earn for their family. क्योंकि हम ना कंडीशनिंग हमारी ऐसी है कल्चरल के, एक बेंचमार्क सेट किया हुआ होता है कि लड़कों ने कमाना है. Yeah, she's pointing the same thing that every other girl on the social media is advising or influencing the different things. Like you can say that digital marketing, influencer marketing, affiliate marketing, these are some examples that girls are saying that this is very easy. You can do a course of 3 months, 2 months, and you can earn a well amount. Yes, and वलीद ने भी जो अभी बात कही है कि after knowing the answers of why are you doing this and what am I getting from this, we should be aligned with the purpose. But when we see here there are so many skills which is important to learn, and daily increasing in number skills comes and everyone says grasp the skill. How to concentrate or focus on the meaningful purpose? Again, Waleed, okay, everyone is saying that. Who is everyone? Who are those everyone? Every reel on the social media. Exactly. मैं वलीद से सवाल करना चाह रही हूँ, who are those everyone? वो कौन everyone है जो आपसे ये कह रहे होते हैं? If you unmute your mic, वलीद, तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी कि who are, okay, so everyone is yourself. और आपको ये प्रेशर आता है कि आपको ये स्किल भी सीख लेना चाहिए, ये स्किल भी सीख लेना चाहिए, you will end up nowhere. आप कुछ भी नहीं सीख सकते. This is very common. Yes. Exactly. क्योंकि ये जो प्रेशर है ना यमुना, ओके, ये कप मुझे बनाना आ जाए, ये नजर आ रहा है आप लोग को, ये ठीक है, ये किसी ने बनाया, ये हैंडमेड है,
और सोशल मीडिया पे मैं देखूं किसी ने ये बना रहा है कोई, और मैं कहूँ कि यार मैं यही बनाना शुरू कर देता हूँ। फिर मैंने कल देखा, ओ अच्छा ये तो कब तो बन रहा था, क्योंकि आपको जल्दी है पैसा कमाने की, आपको उस वक्त फीलिंग आती है कि मैं ये कर लूंगा, यू डोंट नो द डेप्थ ऑफ दैट थिंग। तो जो आप करना चाहते हैं ना, फाइंड आउट द डेप्थ। Rafia, sorry to कि interrupt. We are almost at 1 hour, so I will request to conclude it. यस, एनी क्वेश्चंस? हम लास्ट में कुछ, वलीद ने जैसे कहा, मैं वलीद का आंसर बस Yes, कंक्लूड exactly. करूंगी कि जो भी आप करना चाहते हैं, राइट ऑन अ पेपर कि मैं करना क्या चाहता हूँ, व्हाट आई लव टू डू, व्हाट आई लाइक टू डू। आपका माइंड बहुत पावरफुल टूल है जो आपको हर तरह का जवाब देता है, लेकिन वो आपको इधर उधर भटकाता भी रहता है। जो आपने भी कहा ना कि माई सेल्फ, मैं टिकटॉक, मैं यूट्यूब चैनल खोल लेता हूँ, ओके पोस्ट क्या करेंगे उसमें? मैम मैं आपको है ना थोड़ा सा जो क्वेश्चन है मैं खुद पूछ लेता हूँ कि ना इस तरह है कि मैं कहता हूँ कि ना मैंने डिग्री कर रहा हूँ, खास करने कोई भी, मैं कहता हूँ अकाउंटिंग डिग्री कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं निकलता हूँ कि ना मैं कोई सोशल मीडिया में ना आज है ना आज फर्ज करने के 10 चीजें आ जाएंगी, सैप की, इसी तरह कोई बुक्स वगैरह की ना, ये जो भी होते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह, आप ये सीखो, एक्सेल सीखो, ठीक है। फिर आपने अगले दिन जाए तो 20 चीजें आ जाएंगी सोशल मीडिया में। ये इस तरह बढ़ता रहेगा। अगर ये मैं ना किसी ना वो सीनियर से बात कर लूँ ये वो, तो वो कहते हैं यार बाहर वर्क प्लेस में है ना आपके पास स्किल्स बड़ी काम आएंगी ये वो। अब मेरी डिग्री में ना जो फोकस करना चाह रहा हूँ अभी, यार मेरी कंसर्न डिग्री में है जो कि मैं वो कर रहा हूँ। मेरा ये बीच में से ये चीजें आ रही हैं तो वो फिर माइंड में इतना असर डालती हैं, फिर वो कर नहीं पाता। इसकी फिर क्या है कि ना वो चीजें इग्नोर है। अब वो चीज इग्नोर हो नहीं सकती क्योंकि सोशल मीडिया वो इंस्टिल्ड हो गया हमारे अंदर ना, कि वो जैसे कि अंदर तो चला गया, वो निकल नहीं पाता, और ये रोजाना बढ़ता रहता है। अब इसको फिर उसको खत्म कैसे करें कि अपनी कंसंट्रेशन फुल्ली उसमें आ जाए? दैट्स माय क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच वलीद फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। तो क्वेश्चन आपका ये है कि इसको कैसे खत्म करें कॉन्शियस लेवल पे। आप गली में जा रहे हैं और जो है पाकिस्तान में जैसे कि होता है ना कि स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं वो आ रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप आने देते हैं, आप उन्हें झटकते हैं, आप हटाते हैं कि उनसे बच नहीं भाई बच के इसके जा करीब, उससे बच बच के जा रहे होते हैं। Exactly. या अगर बारिश बहुत हो जाए, पडल्स बन जाते हैं, तो आप, हमें याद है उस वक्त के छलांग लगा लगा के आप उसी गली से जा रहे होते हैं, ठीक है। तो कहीं पानी, गंदा पानी कपड़ों पे ना लग जाए। तो सेम गोल्स, जो ये जो साउंड्स आती है ना, ये आपकी टेस्टिंग के लिए आती है। हाउ मच पोटेंशियल यू हैव टू पुश देम अवे। आप अकाउंटिंग की डिग्री कर रहे हैं, यू हैव अ विजन टू बी एन अकाउंटेंट, ठीक है। तो वो देखा हमने घोड़े के जो वो लगा देते हैं, क्या लगाते थे यमुना, वो जो कवरिंग्स लगा देते थे आंखों पे। अगर हम पाकिस्तान में देखते थे तो वो Yes, कवरिंग एक मुझे लगा देते थे exactly घोड़ों के, word नहीं कि वो याद आ सीधा रहा। चलता रहे जी। Yes. तो व्हेन यू आर अलाइंड विद योर पर्पस और आपको पता है आपने ये करना है, आप इंफॉर्मेशन लें। उसने, किसी इंसान ने बोला ये डिग्री, ये स्किल कर लो, ये स्किल कर लो, ओके सुन लिया। आपका जो पर्पस है आपने उसके साथ अलाइन रहना, और लिटरली की टेक अवे यही है, अपने ऊपर काम शुरू करें। Yes, exactly. हम इसी तरफ स्टार्ट वर्किंग ऑन आते योर हैं। सेल्फ। Yes. कि ओवरऑल अगर हम वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, Yes. आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू पुश पीपल अवे, आपने कैसे ये आर्ट सीखना है। शीरी सेड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। अक्सर लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर अपना काम दिखाना चाहिए और खुद को विजिबल रखना जरूरी है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इस प्रोसेस को, यस वलीद, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस इज अ की, रखना जरूरी है, लेकिन कभी कभी लगता है कि इस प्रोसेस में अपनी पर्सनल लाइफ ज्यादा शेयर करने लगती हूँ। यस, इस चीज को हेल्थी बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? अगेन वर्किंग ऑन योर सेल्फ। बहुत सारे लोग हैं पूरी लाइफ अपनी खोल के रख देते हैं एंड इवेंचुअली दे आर एन आउट ऑफ कंटेंट। आपकी अपनी जिंदगी भी कंटेंट बन चुकी है, नाउ यू आर अ कंटेंट। और उसमें भी राइट डाउन कि मुझे कितना करना है, अ क्विक टिप इज मुझे कितना करना है और कितना नहीं करना। एंड अगेन वर्किंग ऑन योर सेल्फ। इसकी टूल्स हैं, इसकी टेक्निक्स हैं, हाउ टू डू इट। Yes, and for these tools and techniques, you can directly contact to Rafia. In the email, I have shared her link, Instagram link. You can contact directly, or you can contact via our platform, Mindcare Corner. And the excited announcement was that you have joined this webinar. Due to this webinar, you can have a free 30-minute call with her. That is actually a paid call. But thanks to her, she has offered her a free call for the attendees of this webinar.
So if you want to discuss some more things or to want to have some insights from her, you can book a call from her page or from my page, or here is also her, sorry, I was looking for this QR code. You can also scan this code and appoint your call with her. And one more thing, if you go for the sessions with her, you can get the 15% discount from the reference of Mindcare Corner. You just have to show her the screenshot of the emails which you received from me, and you can get the concession of 15%. For the discovery call, you can get that 30 minutes free. And for the remaining coaching program, you can get 15% discount. And any other information you want from her, you can directly go to her Instagram page, that the link I already have shared. And to be more updated, relevant to the content of mental health, you can also follow us on the YouTube and Facebook and Instagram. Thank you so much, Waleed and Sherry, for joining us. You are already one step ahead from the remaining people. I got registration of almost 50 people, and you three are one step ahead. Means that you are more mindful from there, that Exactly. you have joined this call. Thank you so much from your time, Rafia. Thank you Exactly. so much for joining us. Thank you so much. Allah Thank you Hafiz. so much, Yamna. If you Thank